Good morning, students. Today in this video we are going to start with a revision of a chapter Types of Economies, and here are the few questions which help us to revise. Question number 1, what is capitalism? Capitalism क्या होता है? Capitalism is that system wherein means of production are owned by private individuals. हमारी इकनॉमी बेटा हमने रीड किया था, जब चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी कैपिटलिस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्टिक वो पार्ट ऑफ इकोनॉमी होती है जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ओन करते हैं एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस उन्हीं के पास होता है। दे विल टेक ऑल द डिसीजंस related to production, and the main features of the capitalistic economy is economic freedom. They have the freedom, what they want to produce they can produce, which business they want to do they can do it. There are variety of goods in a capitalistic economy because here the consumers are the king and they will produce according to the demand for the consumer. And the huge competition is there in the capitalistic economy which force the producers to do the research and to produce the quality goods. And the next feature is optimum use of resources. In this economy they will use the resources in an optimized manner. There is no wastage of resources because responsibility is there. Efficient प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है एज देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इज़ बीन यूज्ड. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ सोशलिस्टिक इकोनॉमी? सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है? इट इज़ अ सिस्टम अंडर विच इकोनॉमिक सिस्टम इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. इस इकोनॉमी में हर एक चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में होती है. द गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस to meet the necessities of the life, the basic needs of the life of the people. He will not produce the luxury goods. He try to fulfill the needs of all the peoples and to maintain equality. The features of socialistic system is no exploitation of labor. Socialistic हमेशा social welfare के लिए work करता है. That is why there is no exploitation of labor in this market. Best utilization of natural resources, जो natural resources हैं उनका best utilization होता है. Absence of competition, competition नहीं है यहाँ पे because यहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट ही है जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ इन्वॉल्व नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ डेवलप्ड इकोनॉमी? डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है बेटा? डेवलप्ड इकोनॉमी इम्प्लाइज एन इकोनॉमी इन विच हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट एग्जिस्ट. जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, पॉवर्टी लेवल एकदम लो है, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. Underdeveloped economy is that economy in which the standard of living of the people is very low, per capita is very low. It is just opposite to the developed economy. Here the peoples are illiterate. There is a large number of population and underutilization of resources because they are not adopting a latest technology. Question number 7, explain developing economy. डेवलपिंग इकोनॉमी इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेवलप्ड एज वेल एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. ये दोनों का मिक्सचर होता है. दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी पोसेस रिलेटिवली लो रियल कैपिटा इनकम टू दैट ऑफ एडवांस कंट्रीज. इन कंट्रीज़ का जो कैपिटल इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो रिलेटिवली लो होता है, बहुत लो नहीं होता एज कम्पेयर टू एडवांस कंट्रीज़ लाइक USA, UK एंड जापान. क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? जहाँ पे कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक सेक्टर दोनों के फीचर्स आपको मिलेंगे. इट मीन्स वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, दैट इज़ पब्लिक.
It is the economy in which both public and private sector cooperate. Question number 9. State the features of mixed economy. Mixed economy के क्या features हैं बेटा? कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि यहाँ पे दोनों सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के. नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग. यहाँ पे हर एक चीज़ प्लान्ड वे से होती है क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करने देती है. दे ऑलवेज प्लान द थिंग्स एंड देन डू इट. इकोनॉमिक इक्वालिटी मेंटेन रहती है. गवर्नमेंट हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करती है इक्वालिटी. जो पुअर क्लास है उनको हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश करती है, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज़ करती है. एंड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अलाउड. यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउ है, जो सोशलिस्टिक में बिल्कुल भी अलाउ नहीं था. क्वेश्चन नंबर 10. डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या डिफरेंस है बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे सिर्फ नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, हम ये देखते हैं. ठीक है, किसकी रीज़न से हो रही है, वी आर नॉट वरिंग अबाउट दैट. मीन्स सिर्फ लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है, नेसेसिटीज़ गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से रही है, हम उसको नहीं देखते. वी विल ओनली सी देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, मीन्स देयर इज़ एन इकोनॉमिक ग्रोथ. द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है because it will see the changes not only quantitative as well as qualitative also. Means वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मेजर करता है. यहाँ पे सिर्फ नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं देखते. दैट इज़ वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. सेकेंड डिफरेंस इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स राइज इन द इनकम. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड involves not only in rise in income but also reduction in poverty, inequality of income and unemployment. इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ इनकम राइज हो रही है ये देखा जाता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हो रहा है तो इकोनॉमी में से पॉवर्टी भी रिड्यूस हो रही है, इनइक्वालिटीज़ रिमूव हो रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी कम हो रही है. थर्ड वन, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट इंडिकेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं इंडिकेट कर सकता. अ कंट्री मे ग्रो बट मे नॉट डेवलप. अ कंट्री ग्रो कर सकती है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो डेवलप करे हर समय. इट मीन्स जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो इट इज़ नॉट नेसेसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इट मीन्स देयर इज़ एन इकोनॉमिक ग्रोथ. I hope it is clear now. You can go through from the main video of this chapter also for your more thorough revision. Thank you, students.